আমরা এখন আছি আগরতলা নজরুল কলাক্ষেত্র সংলগ্ন ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা অফিস প্রাঙ্গণে। আমরা পেয়েছি ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার যিনি অধিকর্তা ডিরেক্টর মিস্টার বিপ্লব বরকাটিয়া। আমরা এনার সঙ্গে একটু যোগা, অ্যাডভান্স যোগা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अच्छा, आपका जो ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसका मतलब क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मूल ऑब्जेक्टिव है थिएटर को प्रमोट करना, लेकिन हमारा जो टीआई विंग है, जिसे हम बोलते हैं थिएटर इन एजुकेशन विंग, उसमें ज़्यादातर बच्चों के साथ एक्चुअली हम काम करते हैं और शिक्षा को बच्चों के लिए कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और कितना आसान बनाया जा सकता है, उसके तरीक़ों पर, उसके तौर तरीक़ों को ईजाद करना, फिर उसको समझने की बात हम यहाँ पे करते हैं। तो इसीलिए ये इंस्टीट्यूट जो है अपने आप में एक ख़ास है और ये दुनिया का आप पहला इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली थिएटर इन एजुकेशन को लेके ही काम कर रहा है। सर, why you have taken advanced yoga in our life? See, yoga is one of the ancient forms that we have in Indian culture, which can make you physically fit and internally strong. Wow, That is the thing. So that's why we have divided this yoga course into two parts. One is that basic postures from yoga, and another one is the internal process, that cleansing methods, that you need to clean your whole abdomen and all these things to avoid, what should I say, that avoid the common diseases and all these things. So yoga helps you getting strong from either ways, outerly and innerly too. free from all the diseases. Yes, definitely. So that is why we practice drama in drama schools, not here only. We practice it in NSD Sikkim, everywhere, every institute where drama is there. So yoga becomes an integral part of the whole discussion. कहने का मतलब है our drama भी one part of yoga. Yoga may be applied in our drama, or drama should be related with yoga. Definitely. Yoga is a karma, one way, if you see it, that it can be termed as a karma, and theater, drama, whether everything, if you walk, if you go, if you run, if you swim, that is also karma. So it becomes a part of your daily work. So if you can continue this, and then the result says that those Rishi Munis who practice this, they lived for a long time, like 100 years and 120 years. That is also our philosophy by the ancient people. Definitely, that is the thing. And it overpowers you with not only with outer body, but with your inner emotions, because somehow it connects with the adhyatma that we call, and that is the process that we follow, but not the whole thing, but it is definitely a regular. That is if an individual tries to develop spiritually, he or she must come under the course of yoga. I think so. I believe it, because yoga empowers your soul. Yoga empowers you, being physically empowers you, and somehow it will help you to connect with the adhyatmikata. That is the thing. बहुत बढ़िया. One thing more, why you have taken that advanced yoga course? It is already that I have mentioned that it is a cleansing process, because internal cleansing process, like you have some blockage here, sometimes you can block the abdominal cord, chest, incest, or something that you feel lower part of the abdomen, the gas issues would be there, all those, because we in day-to-day life heart disease. Definitely that heart disease these are increasing because of our food habits.
Exactly. Okay, because of our Consumption of our food. definitely. So we need to clean it up on a regular basis to stay pure, stay safe, and stay healthy. That is the thing. If your body is safe, then mind will be safe, and the souls will be safe. Absolutely, absolutely. That is the thing. Uh, Sir, one thing more, you know about our 21st June. Our Honorable Prime Minister, Narendra Modi ji, he has done extremely well in the context of our Indian philosophy, in the context of yoga, and now the world leaders are following him. What do you like to add? uh, First of all, I would like to wish you a very happy and healthy Yoga Day. And this is a tremendous practice going on since 2016, in the initiative of our respected Prime Minister Narendra Modi ji. And it has reached out to the whole world, and whole world has admitted that this our tradition, this particular tradition, yoga, has something to stabilize the society, to stabilize the humanities, to stabilize the healthy atmosphere in the world. So that's why the whole world accepted it and practicing it on this 21st June. So that is a great sign for Throughout us. the world. Yeah, that's a great sign for us. It's a extraordinary thing that is happening throughout the world, that our ancient art form, this yoga, is accepted by the whole world, and however, they are also trying to develop a healthy society around. So that's a good sign for us. ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এতক্ষণ আপনারা শুনলেন আগরতলা ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার ডিরেক্টর মিস্টার বিপ্লব বরকাটুরি থেকে। এনার থেকে আমরা যোগা এবং ড্রামা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনলাম, কিভাবে ড্রামাকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায়। এবার আমরা অ্যাডভান্স যোগার বিষয়াদি একটু দেখব। চলুন আমরা সবাই মিলে অ্যাডভান্স যোগা বিষয়টা কী এবং তার প্র্যাকটিক্যাল দিকগুলি দেখি। এখন আমরা পেয়েছি ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার ইনস্ট্রাক্টর মিস্টার মনোজ সাইকিয়াকে। ইনি অ্যাডভান্স যোগাকে নিয়ে আমাদেরকে কিছু দেখাবেন। साइकिया जी, आप क्या दिखाएंगे? एक्चुअली योगा से पहले हम शतकर्म करते हैं। सो शतकर्म का जो पहला है हमारा कुंजल पे क्या होता है, थोड़ा सा वार्म वाटर लेते हैं, वार्म वाटर पे सॉल्ट डाल के उसको पी के फिर वोमिटिंग करके निकलना होता है। जो अंदर में जो गैस होता है, कब्स होता है, वो निकल के साफ होता है अंदर से। वही दिखाएंगे अभी हमारे स्टूडेंट। अभी प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। हाँ जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ये पानी पीना शुरू किया, वार्म वाटर विथ सॉल्ट, बहुत सारा पानी पिएंगे, जितना हो सके पानी पिएंगे। आप लोग देख रहे हैं यहाँ वार्म वाटर लेना ज़रूरी है, उसके साथ सॉल्ट। 5 से 6 गिलास तक पानी पीते हैं, या उससे भी ज़्यादा हो सके तो पी सकते हैं। आप सिटिंग पोजीशन भी पी सकते हैं और खड़े होकर भी पी सकते हैं। ये है कुंजल क्रिया या बामन क्रिया बोलते हैं इसको। बामन क्रिया, फुल ऑफ स्टोमक पानी पी के उसको फिर निकलना होता है। अभी पानी पी के तैयारी हो गए हैं। ये है वामन क्रिया। जो पेट में गैस होता है, पीठ होता है, वो निकलेंगे। मेंटल ब्लॉकेज भी निकलता है, यहाँ ख़त्म होता है मेंटल ब्लॉकेज भी। ओके, ये 2 या 3 उंगली डाल के निकलते हैं। वामन क्रिया, पेट के अंदर जितना पानी है सब निकलेगा। पानी भी जल्दी पीना चाहिए ताकि डाइजेस्ट ना हो जाए। ये शतकर्म है। योगा से पहले हम साफ करते हैं खुद को ये प्रोसेस से। ये आप हर दिन कर सकते हो। अगर टाइम नहीं है आपके पास, एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे कर सकते हो। ये है हमारा
दंड धोती सतकर्म का और एक पार्ट है दंड धोती, जो आपने देखा है कुंजल पे जितने पानी पीते हैं यहाँ इतने पानी नहीं पीते हैं, थोड़ा सा कम पीते हैं। उसके बाद जो ये आप रबर का पाइप देख रहे हैं उसको अंदर घुसाएंगे मुंह से, और वो जो गंदा पानी है वो निकालते हैं। ये उससे ज़्यादा फ्रूटफुल है। कुंजल पे जितना थोड़ा दर्द होता है, गले वाले पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये अगर प्रैक्टिस पे आ जाए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आपको सुबह करना है, जो आपके पेट में कोई फूड ना रहे, कोई खाना ना रहे, इसीलिए सुबह करते हैं। सुबह के टाइम पे ये करना ज़रूरी है। और जैसे कि पहले जो वाटर हम लिया था वही वाटर, सेम वाटर, इसका प्रोपोर्शन है 1 लीटर पानी में 2 स्पून सॉल्ट डालना है। उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से हमने पानी मिलाया है। ये है दंड धोती। जो कुंजल करते हैं उसके टाइम पे जो बीपी लोग हैं, बीपी वाले लोग हैं, तो नमक में पानी पे नमक नहीं डालना है, ऐसे करना है। ये है दंड धोती। पूरा बाहर का जो है बाहर निकल रहा है, ये सब अंदर का जो कप्स पीट निकल रहा है। ये सतकर्म का नेक्स्ट एक्सरसाइज है रबर नीति और सूत्र नीति। पहले हम रबर नीति करते हैं, रबर नीति पे एक्सपर्ट हो जाने के बाद सूत्र नीति करते हैं। और सूत्र नीति पे जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो डबल किया, ये एक बंदा डबल कर रहा है, डबल सूत्र नीति। इससे नोज़ का जो है नोज़ एरिया, नज़ल एरिया, साइनस एरिया, ये सब साफ होता है। इसको बोलते हैं सूत्र नीति या रबर नीति। और ये दिन पे कभी भी कर सकते हैं, ये टाइम का बाउंडेशन नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। ये हो ही गया। ओके, थैंक यू। ये है जल नीति। आप लोग देख रहे हैं, ये करने के लिए एक नीति पॉट चाहिए और सेम वाटर, वार्म वाटर विथ सॉल्ट। इससे भी साइनस ठीक होता है। ये सतकर्म का दूसरा एक्सरसाइज है, जल नीति। ये रेगुलर प्रैक्टिस से कभी भी कोल्ड, साइनस कभी नहीं होता है। एक साइड से करने के बाद फिर दूसरी साइड से करते हैं। दूसरी साइड करो, अभी दोनों तरफ करना होता है। जल नीति। ये है शीतक्रम कपालभाति एंड व्युतक्रम कपालभाति। पहले क्या करते हैं, नाक से पानी लेते हैं, मुंह से निकालते हैं, शीतक्रम कपालभाति। इससे भी साइनस सिस्टम जो है, साइनस एरिया जो है, नज़ल एरिया जो है वो साफ होता है। ये शीतक्रम, सेम वाटर, वार्म वाटर विथ सॉल्ट। प्रोपोर्शन है 1 लीटर पानी में 2 स्पून सॉल्ट। ये शीतक्रम हो गया। फिर हम इसका उल्टा करेंगे, व्युतक्रम। अभी मुंह से पानी लेंगे, मुंह से पानी लेने के बाद नाक से पानी निकालेंगे, व्युतक्रम कपालभाति। ये है व्युतक्रम, मुंह से पानी लिया और फोर्स करके नाक से निकाला, ये व्युतक्रम कपालभाति। ये भी कभी भी कर सकते हो, दिन पे कभी भी कर सकते हो ये भी। और ये जो करने के बाद हमारे साइनस एरिया पे, नाक पे बहुत पानी रह जाता है, उसको साफ करना होता है, नहीं तो हेडेक या कोल्ड ऐसा हो सकता है। वो भी प्रोसेस दिखाएंगे कैसे पानी निकलता है, निकलना चाहिए, साफ करना चाहिए कैसे।
ओके, थैंक यू। अभी नाक को साफ करो, वो प्रोसेस भी दिखाओ एक बार। 10 टाइम्स करना है। साइड चेंज। ये है हमारा शतकर्म। शतकर्म के बाद हम जाएंगे स्टूडियो पे आसना के लिए। ओके, थैंक यू। এবার আমরা শুনবো ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার ছাত্রছাত্রীরা যোগা সম্পর্কে কি বলেন। आप योगा के बारे में क्या बोलेंगे? सर योगा तो एक जीने की कला है। हम सब कलाकार लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में योगा को प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए कि एज हम कलाकार से पहले एक ह्यूमन बीइंग है। तो एज एक ह्यूमन बीइंग हमारा शरीर स्वस्थ रहने के लिए हमें योगा बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमारे वैदिक काल से चलती हुई एक कला है या फिर एक प्रैक्टिस है, जिसे हम आगे भी करते रहना चाहिए ताकि हम तंदुरुस्त रहे, हाँ स्वस्थ रहे, ताकि हमें एक पीस मिले और एक शारीरिक तौर पे और मेंटल तौर पे हम लोग उसको एंजॉय कर सके, शांत रह सके। और योगा के फ़ायदे बहुत सारे बीमारी में हमें लागू पड़ते हैं, तो उसके लिए बहुत योगा- बहुत धन्यवाद। एक आइडियल लाइफ के योगा मानते हैं आप, बहुत ज़रूरी है। हाँ, आइडियल लाइफ में योगा बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज़ योगा आपको सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी अच्छा करता है। जैसे हमने इतनी सारी नीतियाँ दिखाई, उससे जो हम आजकल का खाना खा रहे हैं, जिस तरीके का खाना खा रहे हैं, तो हमारे टॉक्सिन्स जो बॉडी में वो निकलनी चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू दैट। एंड अभी खाना और सारी चीज़ें आप देख ही रहे, मिलावट एंड एवरीथिंग, सो दैट्स वाई वी रियली नीड योगा। एंड आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपको मेंटली भी काफ़ी प्रिपेयर करता है काफ़ी चीज़ों के लिए, मेंटल पीस के लिए। और आप अच्छे होंगे तो आपका परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो फिर आगे जाके और पीढ़ियाँ भी स्वस्थ होंगी। व्हाट इज द रोल ऑफ योगा इन वुमेन लाइफ? Yoga, I say it's a way of life. It's an inner engineering. So to balance the life emotionally, physically, mentally, to be calm, and we always, in this current generation, we always, keep on working, and mentally we are not peaceful. And to gain that, we need breathing techniques. When sort of techniques we have to learn from the experts like our yoga teacher. So. For example, I give 2 examples. One is turtle, another one is rabbit. So you know the lifespan of rabbit and lifespan of turtle. It's because of breathing techniques. So if we follow certain techniques as a humans, we can make our life better, and we can live this life very peacefully. And for this world, I think we day by day losing the peace. To gain that peace from certain technique and ancient culture, to follow that, we can, I think, make this world a better place to live in. So it is not just physically fit, and as an actor we should be physically fit and flexible. Other than that, it is for me like larger than life. मैम जी, is it important also for the our women group? Of course, nowadays you can see a lot of health issues in women. So if we follow the proper diet plan, if we follow a certain asanas, there are asanas where Patanjali Muni, and also I'm from Mysore, so BKS Iyengar, and there are ways. I mean, yoga, as my friend said, it started from India, and we actually started that, and we invented it. So I think we have to start from the roots and should be grounded to be, as I've mentioned, that to be mentally fit, emotionally strong, and ethically strong. We need asanas. As you asked, for women, not just women, for all the human being, we have answer in yoga. All the asanas says something, and it is very connected to our health. And if we know our anatomy better, and we can do asanas even more Now, better. फास्ट फूड के बारे में बताना चाहता हूँ। वो बहुत जंक फूड है। तो फास्ट फूड जंक फूड है, बहुत ऑयल रहता है। योगा करने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं जब पहले नहीं किया था, जब शुरू किया ये प्रैक्टिस, तो मेरा जितना भी बीमारी था धीरे धीरे कम हुआ। मेरा कॉफ था, साइनस था, सब कुछ। और धीरे धीरे जो फास्ट फूड खाने वाला जो टेंडेंसी था, फास्ट फूड खाने का मन करता है, वो भी पक्का। कम हो जाता है। पक्का पक्का। बाकी हेल्दी फूड खाने का मन करता है। बहुत एक
अलग सा बॉडी में वो ऊर्जा आता है, ऑरा आता है, जो योगा से ही होता है। मैं पहले जैसे स्कूल के टाइम पे करता था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने जिम वगैरह की, पर उससे क्या था, बॉडी बहुत स्टिफ हो गई थी। मतलब मुझे पहले बात ये पता नहीं थी, जब योगा स्टार्ट किया तब पता लगा कि मेरी टांगें मुड़ नहीं सकती बहुत देर तक, तो काफ़ी स्टिफनेस आ गई थी। पर अभी योगा 2-2.5 महीने से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और सर जैसे बहुत हेल्पफुल और बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाते हैं चीज़ें। हम बहुत सिंपल से एडवांस की तरफ गए हैं इन 2 महीनों में, और बॉडी में बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस हमें खुद फील होते हैं। हम फील कर पाते हैं कि अभी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बढ़ गई है चीज़ों को लेके, और इवन अंदर से जैसे कुछ यहाँ पे खाना हमारे लिए बहुत चेंज, हमें दूसरे एक स्टेट से यहाँ पे आना, तो वो जो इंटरनल एक डाइजेशन को लेके वो सब चीज़ें लेके, या फिर जो वो फीलिंग होती है, वो बहुत सारी चीज़ें जो है योगा ने सेट की हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। योगा सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी हम तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हैं। ड्रामा स्कूल में जैसे आप स्टेज पे कुछ भी परफॉर्म करते हो तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ ये ड्रामा में होना ज़रूरी नहीं कि मैं ड्रामा स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं ये करूँ, ये ज़रूरी नहीं है। हर किसी आदमी को जो रियल लाइफ में, जो आम आदमी जो भी, उसके लिए योगिक क्रियाएँ होना, कि जिस तरह आजकल हम स्पोर्ट्स में देखते हैं, किसी भी तरह की फ़िज़िकल मूवमेंट में योगा का होना बहुत ज़रूरी। और सिर्फ फिज़िकली नहीं, यहाँ पे जब हम ड्रामा स्कूल में हैं तो हमें सिर्फ एक अभिनेता के तौर पे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो सकती है, वो ही नहीं सिखाया जाता है। हमें ये भी सिखाया जाता है कि आप किसी एक दिव्यांग आदमी को, उसको अगर कोई कमर की दिक्कत होती है, उसके घुटनों की दिक्कत है, तो आप उनके साथ योगा कैसे करोगे, उनकी क्या योगिक प्रैक्टिस होती है। We are celebrating the yoga days for a international day. Why? Because it's yoga is very important for us. It's about like it's a Asian culture for us. It's important to celebrate those days and spread the yogas in all over the world. That is important, I think, because regular life mein we need yogas, every asanas. That is really make a changes in our life. We try to celebrate that because yogas come from India. We have to pride about that. Yogas it's very helpful to the daily life to create a human being in a very good manner. That should everybody should be celebrate that. Follow. Yes. What will be your message regarding our International Yoga Day? For me, as I've mentioned, to balance the life in a great manner. It is like you have to start from you. It is not one day process. You have to do every day, and from inside you have to feel it. First you have to experience from inside. Through you it will start. As my teacher mentioned, you have to start from you, and then from your home, and then from your place, and then district, and then state, and then it will spread all over the country. And as I've mentioned, it is our culture. We started it, so all other countries are following very beautifully. Why not we? It is directly associated to health, and health is very important to live peacefully. It starts from there. To be healthy, to be fit, whatever, whether you are an actor, whether you are a farmer, whether you are a doctor, whether you are any profession for that matter, we need this. It is a basic thing. So how we eat, we don't forget to eat, we don't forget to drink water, we don't forget to do things which we like. This is also part of life, so make it a habit. नमस्कार, मैं मोनुष सैकिया हूँ। मैं अभी क्लास कर रहा हूँ योगा के बारे में सिखा रहा हूँ स्टूडेंट को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा TI ब्रांच में त्रिपुरा में। ये जो सुबह अवसर पर, ये योगा दिवस सुबह अवसर पर हम सभी को यौगिक शुभकामनाएं देते हैं, सभी को बधाइयाँ देते हैं। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योगा दिवस स्टैब्लिश किया, ये भारत के हर जनगण को, मतलब इवन विदेश को में भी, ये जो हमारा जो बहुत दिनों से चल रहा है योगा, इसको यौगिक जो प्रोसेस को होल वर्ल्ड पे जो स्प्रेड करने के लिए जो कोशिश है, बड़ा कोशिश है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम एक्टर है, एक्टर को जैसे फिज़िकल फिटनेस के लिए या मेंटली फिट रहने के लिए जैसे योगा चाहिए, ऐसे भी केवल एक्टर्स को छोड़ के एक ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है, जो मेंटल पीस और फिज़िकल पीस के लिए। अभी देखिए, हम जैसे डेली लाइफ में जंक फूड को छोड़ के, जंक फूड तो है ही, उसके अलावा जो हम सब्जियां खाते हैं, जो खाना खाते हैं, सब्जी पे देखिए कितना सारा पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं आजकल।
कोई भी सामान देख लीजिए, कितना रासायनिक सार जो यूज़ करते हैं वो हम शरीर पे ले रहे हैं थ्रू आवर फूड। दैट्स वाई ऑलवेज हमारे बॉडी पे कुछ टॉक्सिन हमारा बॉडी पे प्रोड्यूस होता है, जिसके ज़रिए हम हमेशा मतलब डेली हमारा बॉडी को लोअर लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो इसीलिए उसको बूस्ट करने के लिए, शरीर को मेंटल को बूस्ट करने के लिए ये जो प्रोसेस है योगा से पहले हम जो शतकर्म करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो शतकर्म के अलावा हम करते हैं जो आसना वगैरह करते हैं, जो हम ये मानते हैं कि ये सब एक दिन का प्रैक्टिस नहीं होता है। जो योगा दिवस, ठीक है, योगा दिवस पे तो करना ही है, जो ये प्रोसेस इसीलिए है कि ये प्रोसेस हमेशा डेली लाइफ पे अपनाना है, ताकि हमारे लाइफ में योगा आ जाए, ताकि योगिक लाइफ जो हम मॉडर्न इस पे बोल सकते हैं कि योगिक लाइफ बनाने के लिए कोशिश जारी रखना चाहिए। तभी हम एक हेल्थी लाइफ, एक अच्छा शरीर, अच्छा मन ऐसे लेके हम जी सकते हैं। हम अभी आसना शुरू करेंगे। ये वज्रासन पे बैठे हैं सभी लोग। वज्रासन पे हम जाएंगे शशांकासन। रेडी, गो। Breathe out and go down. Shashankasan. फिर वज्रासन पे आएंगे। कपालभाति से शुरू करेंगे हम बाहर जो शतकर्म करके आते हैं उससे पहले हम यहाँ आके शशांकासन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद करते हैं हम कपालभाति। ओके, आइज क्लोज। नाड़ी शुद्धन, ये एक प्राणायाम है। लेफ्ट से शुरू करेंगे हम। लेफ्ट से ब्रीद इन एंड राइट से ब्रीद आउट, एंड राइट से ब्रीद इन एंड लेफ्ट से ब्रीद आउट। ये है एक राउंड। 3 राउंड करेंगे हम। नाड़ी शुद्धन प्राणायाम। Grab your hands. Standing position.
neck rotation, shoulder, आसना जाने से पहले हम थोड़ा सा जॉइंट है, जॉइंट का एक्सरसाइज कर लेते हैं। chest, चरखा डायमेंशन, small circle, waist, ankle joint, हस्त संचालन, हस्तपादसन, हस्त उत्थान, प्रणाम, प्रणाम, हस्त उत्थान, हस्तपाद, हस्त संचालन,
पर्वतासना, स्थांगासना, भुजंगासना, पर्वतासना, अश्व संचालन, हस्त उत्थानासना, and pranamasana. त्रिकोणासना, त्रिकोणासना, नॉर्मल ब्रीदिंग, दूसरी साइड जाएंगे हम। एक वेरिएशन है त्रिकोणासना। त्रिकोणासना, ताड़ासना। ब्रीद आउट पे जाएंगे ऊपर, नॉर्मल ब्रीदिंग, come back, change, stay there, लेफ्ट साइड जाएंगे, तिर्यक ताड़ासना। राइट साइड जाएंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, राइट साइड तिर्यक ताड़ासना, नॉर्मल ब्रीदिंग, द्विकोणासना। Look front, body straight, and come back. Samkonasana. Breathe in
and breathe out. Look front. Malasana. Look front. Bhadrasana. सुप्त भद्रासना. पहले सामने आएंगे, ब्रीद आउट पे आएंगे, सुप्त भद्रासना पे जाएंगे विद द हेल्प ऑफ योर एल्बो, हैंड्स. Breathe out. Stay there and normal breathing. Hands on thighs. उस्त्रासन है. पेल्विक एरिया को बाहर पुश करना है. नॉर्मल ब्रीदिंग. गोमुखासना. Look front and straight, normal breathing. साइड चेंज करेंगे, लेग पोजीशन चेंज करेंगे. Bakrasana. साइड चेंज करेंगे. Breathe in and breathe out. Paschimottanasana. Salvasana.
Normal breathing. Look front. Makarasana. Salavasana. Again Makarasana. Sarpasana. पूर्ण भुजंगासन करने के लिए कोशिश करेंगे हम। Normal breathing. Dhanurasana. Normal breathing, stay there, look up. Supta Vakrasana. Spinal twist. Speed. जल्दी जल्दी जल्दी। हनुमान दंडासना। Seturasana. Sarvangasana.
हलासना, कर्णपीडासना, सर्वांगासना, कंधासना, चक्रासना, डाउन, अप, नौकासना, भुजंगासना, पवन मुक्तासना, पूरा निकलने दो। हाँ। Leg straight, hand straight, palm up, shoulder relaxed. दोनों लेग के बीच में 1 या 1.5 फीट का गैप. Normal breathing. Eyes close and listen sounds. Savasana. Left turn. And slowly come to sitting position. Rub your hands. Put hand on eyes, face, head, shoulder. Open eyes. Thank you. এতক্ষণ আমরা ছিলাম আগরতলা ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা। আমরা ছাত্রছাত্রীদের যোগা প্রদর্শন দেখলাম, অ্যাডভান্স যোগা দেখলাম এবং যোগার বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা তার বিশদ আলোচনা শুনলাম। সুতরাং আজকে আমরা এখানেই শেষ করব যোগার জিনিস, কিন্তু যাবার আগে একটি কথা আপনাদেরকে স্মরণ করে দিতে চাই। আমরা এপিল রাখতে চাই আম জনতার কাছে
যে যোগা নট ফর দি যোগা ডে অনলি, যোগা সারা বছরের জন্য দরকার। আমাদেরকে যৌগিক হওয়া দরকার, মাইন্ড বডি সোল হবে আমাদের স্পিরিচুয়ালি ডেভেলপড। তাহলে একদিন আমরা উন্নত হব, ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে স্টেট, স্টেট থেকে কান্ট্রি, কান্ট্রি থেকে দি গ্লোবাল অ্যাওয়ারনেস। সুতরাং সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন এবং প্রতিদিনই নিয়ম করে কিছু না কিছু যোগা করুন। নমস্কার। रहो